जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 बोलिए हरे कृष्ण हरे राम राम 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 हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 राम
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Hare. हाँ, आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। तो हम प्रभु जी से निवेदन करेंगे कि आगे का सत्र कंटिन्यू करें। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय गीता कोर्स के लिए निकालने के लिए। विशेष रूप से गीता कोर्स का प्रायोजन करने वाले हरे कृष्णा गुना केंद्र के सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हम लगभग इस कोर्स के अंत तक आ चुके हैं और 4 दिन और बचा है। कल हमने एक बहुत ही विशेष विषय पर चर्चा करी थी कि प्रकृति, पुरुष और चेतना क्या होती है ना। आज भी हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो कि संसार भर में समस्याओं का कारण। उसका ज्ञान लेने मात्र से ही व्यक्ति परेशानियों से मुक्त हो जाता है, ऐसा भगवान ने समझाया है ना। तो आज हम एक बहुत विशेष और बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जटिल विषय पर चर्चा करने वाले। जटिल नहीं है क्योंकि जटिल तो सब कुछ है वैदिक शास्त्रों में, लेकिन गुरु परंपरा के ज्ञान के कारण सब कुछ हमको बहुत आसानी से समझ में आ सकता। कल हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछते हैं, भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच का भेद अर्जुन को बताते हैं। ज्ञान की पद्धति भगवान अर्जुन को बताते हैं कि ज्ञान के अंग कौन कौन से हैं, आत्मा और परमात्मा के बीच का अंतर, पुरुष कौन है, और जो व्यक्ति यह सारा ज्ञान समझता है उसके लक्षण क्या क्या, दिव्य स्तर पर वो पहुंच जाता है ना। तो कल हमने इन सब विषयों पर चर्चा करी थी। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जिसका शॉर्ट फॉर्म इस अध्याय के लिए रखा गया है ट्रैप। ट्रैप मतलब जाल। कौन सा वाला जाल? मछली पकड़ने वाला जाल नहीं। अध्याय के 1 से 9 नंबर के श्लोक में हम देखेंगे, भगवान बताएंगे अर्जुन को कि किस प्रकार सारा विश्व, सारा संसार 3 गुणों में विभाजित है। कौन से हैं हम आगे देखेंगे। और प्रधानता के लिए प्रतिस्पर्धा होती है इन तीनों गुणों के बीच। और गुणों के अंतर्गत कर्म, कौन सा व्यक्ति किस गुण में रहकर किस प्रकार के कर्म करेगा, उस व्यक्ति का कैसा कर्म रहेगा। और यह गुण समझने वाले व्यक्ति का जीवन कैसे पवित्र हो जाता है, कैसे उसका जीवन में परिवर्तन होता है, ये हम आज देखेंगे, है ना। तो 3 गुण भगवान क्या बता रहे हैं। अच्छा, वैभव प्रभु क्या आप ये पढ़ेंगे? अनम्यूट करिए खुद को और ये पढ़िए पूरा पूरा जी। प्रेजेंटेशन। श्लोक 13.22। पहले श्लोक और पहले फिर पूरा वो। अच्छा, पहले श्लोक कहाँ से पढ़ना है प्रभु जी? श्लोक मैं पढ़ देता हूँ, आप टेक्स्ट पढ़िए। अच्छा। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिर्जान् गुणान् कारणं गुणसंगस्य षड् असद् योनि जन्मसु। ये हमने कल चर्चा करी थी इस पे, है ना। भगवान बता रहे किस प्रकार शरीर जीव प्राप्त करता है गुणों के संग के अनुसार। उसका संबंध क्या है, अभी पढ़िएगा वो। श्लोक 13.22 में वर्णन हुआ है कि कैसे जीव पुरुष अपने भोग की इच्छा के कारण फुल स्क्रीन भोग की इच्छा के कारण बंधनों में फंस जाता है। अध्याय 18 में बताया गया है कि किस प्रकार माया प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा जीवों को बांधती है। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं।
तो इस प्रकार 13वें और 14वें अध्याय के बीच में संबंध प्रारंभ होता है कि माया में फंसने के बाद 3 गुणों के अधीन व्यक्ति अलग अलग शरीर जो है प्राप्त करता है ना। और प्रकृति के संग के कारण है। प्रकृति की मुख्यतः क्या है, प्रकृति में क्या है, प्रकृति में 3 गुण है। इसलिए उसको कभी अच्छा शरीर मिलता है, मान लीजिए मनुष्य शरीर, कभी बुरा शरीर मिल सकता है, सुअर का शरीर, कुत्ते का शरीर। किस प्रकार होता है, आइए आज हम उस पर करते हैं, है ना। अभी इस अध्याय में भगवान बताने वाले हैं कि गुण क्या होते हैं, 3 गुण क्या हैं, कैसे कार्य करते हैं और किस प्रकार जीवों को मोहित करते हैं, जगत में बांध कर रखते हैं, और कैसे इन 3 गुणों के प्रभाव से ऊपर उठा जा सकता है ना। इसके ज्ञान से किस प्रकार हम ऊपर उठ सकते हैं। सबसे पहले भगवान जब अध्याय का प्रारंभ करते हैं तो क्या बताते हैं, महिमा बता रहे हैं कि अगर कोई ज्ञान प्राप्त करता है कि 3 गुण कौन कौन से हैं, क्या हैं, कैसे हैं, उससे क्या होता है कि सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त करने के बाद परम सिद्धि को प्राप्त करता है। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे जो मुनि कैटेगरी के व्यक्ति हैं परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं, है ना। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के परिणाम इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्य मम आगताः, धर्म से धर्म युक्त होके व्यक्ति मेरे पास आ सकता है और कभी ऐसा व्यक्ति व्यथित नहीं होता, दुखी नहीं होता, है कि नहीं। अब इसके बाद भगवान गुणों का वर्णन करने से पहले खुद का और प्रकृति का वर्णन करते हैं। आपको याद हो तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, भगवान को अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि प्रकृति क्या है। तो भगवान प्रकृति और इस जगत के बीच में संबंध बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आने वाले हैं, ये 2 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण। क्यों, भगवान अभी बता रहे हैं कि किस प्रकार भगवान इस जगत के परम पिता हैं। जो भी योनि इस जगत में आई है भगवान के द्वारा आई है। और प्रकृति जो है, देखिए जब भी हम प्रकृति को बोलते हैं, प्रकृति मतलब स्त्रीलिंग होता है। उस स्त्रीलिंग प्रकृति को गर्भस्थ कौन करता है, केवल अपनी दृष्टि के माध्यम से भगवान प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं। बता रहे हैं मम यो निर्महत ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। कि मैं प्रकृति की योनि में जीवों का संचार करता हूं। इसलिए अगले श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय, सर्व योनिषु हे कुंती पुत्र, सारी योनियां मूर्तयः संभवन्ति याः, इस प्रकार जगत में आती हैं, है ना। तासाम ब्रह्म महद योनिर, योनि में जीवों का प्रवेश होता है किस प्रकार, अहम बीज प्रदः पिता, मैं वो बीज प्रकृति के गर्भ में डालता हूं। जिस प्रकार जब एक नारी और पुरुष और स्त्री का संगम होता है तो पुरुष जो होता है वो नारी के गर्भ में बीजारोपण करता है अपने वीर के माध्यम से। उसी प्रकार भगवान परम पुरुष हैं, प्रकृति के माध्यम से बहुत जीवों को जन्म देते हैं। भले ही परोक्ष रूप में देते होंगे दृष्टि के माध्यम से, वही दृष्टि इस जगत में महादेव का रूप है। इसलिए भगवान शिव को, है ना, महेश्वर कहा जाता है, उनको शिवलिंग से दर्शाया जाता है ना। तो काफी विस्तार से इसका वर्णन कर सकते हैं लेकिन हमारे पास समय की कमी है।
उसके बाद भगवान बताते हैं कि किस प्रकार वो जीवों के एग्जिस्टेंस में लाने के लिए जीव किस प्रकार आएंगे। भगवान प्रकृति में गर्भारोहण करते हैं। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि मनुष्य शरीर में बदलाव होते हैं और उसी प्रकार योनियों में भी बदलाव हो रहे हैं, है कि नहीं। विभिन्न प्रकार की योनियां, 84 लाख योनियां शास्त्रों के अनुसार, है ना। 84 लाख योनियां अलग अलग योनियों में जो आत्मा है वो प्रवास करती है अपने कर्म के अनुसार, है ना। तो ये विभिन्न योनियां आप स्लाइड में देख सकते हैं, अलग अलग प्रकार के जानवर, हर पशु, पक्षी, जलचर, कीड़े मकोड़े, इतनी सारी योनियां भगवान के कार्य रूप में। इन सबके सृष्टा कौन होते हैं? स्वयं भगवान, है ना। अभी भगवान प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। क्या बता रहे हैं? सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। क्या बता रहे हैं? भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। 3 गुण कौन कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण, है ना। अब इसके लक्षण क्या है, कैसे होता है ये? हे महाबाहु अर्जुन, जब भी कोई जीव जो है इस जगत में आता है और गुणों के संपर्क में आ रहा है तो वह इन गुणों से बन जाता है। आप चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार भगवान के अधीन ये 3 गुण हैं और तीनों गुण इंसान को कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। अभी किस प्रकार लक्षण होता है ये कहानी के माध्यम से हम, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम सीखें। आप में से कितने लोगों ने, चैट बॉक्स में जाके आप लोग यस और नो टाइप कर सकते हैं 5 सेकंड के अंदर तुरंत। आप में से कितने लोगों ने वो कहानी सुनी है कि एक टोपी बेचने वाला होता है, वो जंगल में जाता है, तो वो टोपी की टोकरी जो होती है पेड़ के नीचे रख देता है। किसने सुनी है? आप यस और नो में बता सकते हैं चैट बॉक्स में जाके। फिर उसकी टोपी बंदर ले जाता है ना। बंदर से फिर वो टोपी लेता है। किस किसने ये कहानी सुनी हुई है? लगभग सभी ने, सबने। हमने ये कहानी जो है सुनी हुई है। अच्छा, नहीं सुनी है? मुझे लगा यस लिखा है, नहीं सुनी है। ठीक है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी सी कहानी है। एक बार एक कैप सेलर, टोपी बेचने वाला व्यक्ति, है ना, हैट चाहता है, हैट टोपी, जंगल में जाता है टोपी की टोकरी लेके। अब उसके पास अलग अलग रंग की बहुत सारी टोपियां होती हैं, बहुत बड़ी टोकरी में बहुत सारी टोपियां होती हैं। अब उसे जंगल में जाते समय थक जाता है। थकान की वजह से वह एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए क्या करता है, अपनी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है और सो जाता है। धीरे धीरे थकान के कारण उसकी नींद लग जाती है। अब जैसे ही वो उठता है तो देखता है उसकी टोकरी खुली हुई है। टोकरी खुली है, वहां से टोपियां गायब है। बहुत सारी टोपियां इधर उधर बिखरी पड़ी है। कौन ले गए? बंदरों का एक झुंड आया, सारे बंदर पेड़ के ऊपर बैठ गए और उसकी टोपी ले गए। अब सब बंदर टोपी हाथ में लिए, है कि नहीं। तो अब उसके, कहानी कुछ और है लेकिन हम इसको एनालाइज करें तो उसके 3 प्रकार की प्रतिक्रियाएं हो सकती है ना। पहली प्रतिक्रिया, बंदर टोपी ले गया, उसने देखा उसकी सारी टोपी बंदर ले गया, उसका तो धंधा खराब हो गया। तो वो किस प्रकार प्रतिक्रिया दे सकता है? दुखी हो सकता है, अरे यार मेरी टोपी बंदर ले गया, मैं नहीं कर रहा है इसे, अब क्या धंधा करूंगा, मैं तो जी बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, नदी में कूद के आत्महत्या कर लेता हूँ, इसी पेड़ से लटक जाता हूँ, मेरे साथ ये सब होना था, हे भगवान, हे ऊपर वाले, क्यों किया मेरे साथ ऐसा। परेशान हो सकता है वो। दूसरा तरीका, वह क्या कर सकता है? बंदरों को मार सकता है। पत्थर उठाया, बंदर में खींच के दिया, है ना।
बंदर में खींच के दिया, खड़े खड़े बंदर को गालियां दे रहा है, अरे बंदरों कहीं के, पत्थर मारूंगा मर जाओगे, भागो यहाँ से। क्या इससे उसको उसकी टोपी मिलने वाली है? नहीं, बंदर को मारोगे बंदर तो भाग जाएगा। तीसरी प्रतिक्रिया जो कि कहानी में होता है, आदमी जानता है बंदरों को भगा नहीं सकते, बंदर टोपी लेके चले गए, बंदर उसे चिढ़ा रहे हैं। अब वो क्या करता है, उसे एक बात समझ में आती है कि बंदर नकल करते हैं, तो एक टोपी जो बिखरी पड़ी थी वो टोपी लेता है, हाथ में लेता है, जैसे बंदर लिए हुए हैं, हाथ में लेता है, सर पे पहन लेता है। सारे बंदर भी टोपी सर पे पहन लेते हैं, है ना। फिर वो टोपी उठाता है और वो टोपी टोकरी में फेंक देता है। सारे बंदर वो टोपी जो है, कैप, टोकरी में फेंक देते हैं। जैसे टोकरी में फेंकते हैं वो टोकरी इकट्ठी करता है, चला जाता है। ऐसी तैसी करा गई बंदरों की। तो इसी प्रकार तीन गुणों में हमने प्रतिक्रिया देखी। तो जो पहली प्रतिक्रिया जो हमने देखी जिसमें व्यक्ति दुखी हो गया था, वो कौन से गुण में थी? तमोगुण में। दूसरी प्रतिक्रिया जो हमने देखी वो किसमें देखी? रजोगुण में, जिसमें व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है। तीसरी प्रतिक्रिया जो हमने देखी वो थी सतोगुण में, जहां उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। है कि नहीं? तो तीन गुणों के संपर्क में आने पर जीव के अंदर क्या बदलाव होते हैं, किस तरह वो बांधते हैं, वह हम भगवान ज्ञान दे रहे हैं उसके माध्यम से देखेंगे। क्योंकि भगवान बता रहे हैं कि ये तीन गुण जो हैं अर्जुन, ये इस जीव को माया में फंसा कर रखते हैं, है ना। और अलग अलग शरीर प्राप्त करता है एक जीवात्मा केवल गुणों के कारण, तीन गुणों के कारण, है ना। निबधनंती महाबाहो, है ना, बंध जाते हैं गुणों के कारण। कैसे? सत्व गुण द्वारा बंधन, रजोगुण द्वारा बंधन और तमोगुण द्वारा किस प्रकार बंधते हैं, है ना। सत्व गुण सत्व गुण भी बंधन का कारण है, प्रियम। तो ऐसा नहीं, सत्व गुण में व्यक्ति के पास ज्ञान होता है तो वो बंधता नहीं है, वो भी बंधता है। कैसे? हम देखने वाले हैं। सतोगुण में भगवान क्या बता रहे हैं, सतोगुण के गुण क्या होते हैं। अच्छा, सतोगुण में कोई व्यक्ति है तो उसके लक्षण क्या होंगे? सतोगुण में कोई व्यक्ति है तो किस प्रकार कार्य करेगा, वह हम देखते हैं। भगवान क्या बता रहे हैं? तत्र सत्वम निर्मलत्वात्। तत्र सत्वम मतलब जो व्यक्ति सतोगुण में है, प्रकाश कमनामयम। तत्र सत्वम निर्मलत्वात्, क्योंकि उसकी चेतना और अपेक्षा शुद्ध हुई है। प्रकाश कमनामयम, पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है ना। और उसके लक्षण क्या होते हैं? सुख संगेन बध्नाति, सुख होता है उस व्यक्ति को, अपने जीवन में काफी संतुष्ट रहता है, सुखी रहता है। ज्ञान संगेन चानघ, और ज्ञान रहता है उसे अपने जीवन में। आप सोच सकते हो कि अरे सुख है, आदमी को क्या चाहिए? ज्ञानी बनना, सुखी रहना है। तो सतोगुण में रह रहा है तो फिर कैसे वो बंध रहा है प्रकृति में, है ना। सतोगुण में रहने के बावजूद भी एक व्यक्ति जो है इसमें बंध जाता है, क्योंकि वो सतोगुण से ही आसक्त हो जाता है, जबकि आसक्ति भगवान से है कि नहीं। हे निष्पाप अर्जुन, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्यों के सारे पापों को से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं, है कि नहीं।
तो सतोगुण के अनुसार लोग बन जाते हैं, इसीलिए अलग अलग शरीर व्यक्ति प्राप्त कर रहा है सतोगुण के प्रभाव के कारण, है ना। तो एक मिनट, ये लैपटॉप में कुछ गड़बड़ हो गई है। अच्छा, पीपीटी चल रही है ना, अगली आई ना? यस प्रभु जी। ओके ओके, बस बस ठीक है। और रजोगुण में क्या होता है? सतोगुण में तो सुख और ज्ञान होता है, रजोगुण में आपने देखे हैं बहुत हाइपर एक्टिव लोग, हमेशा कर्म करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, कभी भी एक चैन से एक जगह नहीं बैठ सकते, है ना। तो इन लोगों को क्या लक्षण है, इन लोगों के वो हम आगे देखेंगे। रजोरागात्मिकम वृद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। कोई इसका अनुवाद पढ़ना चाहेगा, फिर मैं इसको समझाता हूँ। कोई पढ़ेगा? हाथ ना हाथ ऊपर कर सकते हैं आप, वैभव प्रभु जी के अलावा। हाँ, अभिषेक प्रभु आप अनम्यूट करिए खुद को। हाँ, अनुवाद आवाज पढ़िए। आ रही है सर आप तक? हाँ जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। धन्यवाद अभिषेक प्रभु। देखिए ना, जो लोग जिनकी बहुत प्रगाढ़ इच्छाएं होती हैं, मेरे भी कुछ सपने हैं, मेरी भी इच्छा है, दिस इज माई पैशन, है ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, करो वही जो दिल कहे। ये कौन लोग हैं? रजोगुणी लोग हैं, है ना, जिनके अंदर क्रियाशीलता इतनी रहती है, मतलब हद क्रियाशील व्यक्ति रहते हैं ये, है ना। आप चित्र में देख सकते हैं, ये इतनी तृष्णा है इनके अंदर। इसके लक्षण क्या है? तृष्णा, हैंकरिंग, लालायित रहना किसी भी चीज को लेके, और संगेना, असीम आकांक्षा, संगात तृष्णा, जिसमें कि सबसे ज्यादा पुरुष और स्त्री के संग में जो आकर्षण होता है रजोगुण के प्रभाव से होता है, इसीलिए ये रजोगुण का कारण है। और रजोगुण के अलावा तमोगुण के क्या गुण है? भगवान बता रहे हैं कि तमोगुण में व्यक्ति को निद्रा, आलस्य और प्रमाद होता है ना। श्लोक हमें बताते हैं, तमस तत्त्वज्ञानम अजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिस्तन निबध्नाति भारत। हे भरत पुत्र, तुम ये जान लो, भरत वंशी ये जान लो, क्या जानो, कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। मोह होता है, माया में व्यक्ति रहता है, अज्ञान में कोई व्यक्ति रहता है। ध्यान दीजिएगा, अज्ञानी कोई व्यक्ति है, मोह में कोई व्यक्ति है, और इसके प्रतिफल क्या है इसके गुण के? पागलपन, आलस तथा निद्रा। इन गुणों से वो बंधा हुआ रहता है। देखिए ना, लोग हमेशा आलसी जो रहते हैं, एकदम ऐसे आलस में रहते हैं। हाँ भाई, उनको फोन लगाओगे तो ऐसे ही बात करेंगे। हाँ भाई, कहाँ पर? अरे चलो खेलने आ जाओ। अरे मैं नहीं आ रहा, मैं सो रहा हूँ। 12-12 घंटे वो लोग सोते हैं, सड़ा हुआ खाना खाते हैं, नहाना ही नहाना। मतलब इंजीनियरों की बात चल रही है यहाँ पे, ऐसा नहीं है। लेकिन कुल मिला के निद्रा, आलस्य और प्रमाद इस गुण के लक्षण। अभी भगवान बता रहे हैं कि सत्व गुण में सुख का संचार होता है, रजोगुण में सकाम कर्म करने की प्रवृत्ति होती है, कुछ उसको नया करना है। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, वो व्यक्ति जबरदस्ती बाइक उठा रहा है, चला रहा है, स्टंट करना है, किक मिलती है उसे चीजें का, है कि नहीं। शांति से बाइक चलाना भाई नहीं, एक बाइक पे, एक टायर पे बाइक चलाएगा, कभी अगला वाला ऊपर, कभी पिछला वाला ऊपर। और तामसिक व्यक्ति, हमने कहानी में देखा कि वो बंदरों को सिखाने के बजाय खुद सुसाइड करने की सोच रहा था। तो ये सुसाइडल थॉट्स जो आते हैं, आत्महत्या करने के विचार आ रहे हैं, जीवन को जो लोग छोड़ देते हैं,
कठिन स्थिति से जो लोग पलायन कर लेते हैं वह तमोगुणी कहलाते है ना, क्योंकि उसमें अज्ञान होता है। आर से अब भगवान बता रहे हैं रेस फॉर प्रोमिनेंस, रेस फॉर प्रोमिनेंस, प्रधानता के लिए प्रतिस्पर्धा। इसमें भगवान ये बता रहे हैं कि वास्तव में ये तीन, अब आप बोलेंगे कि ये तीन गुणों में से मैं किस गुण में हूं, है ना, आपने बताया तीन गुण में से मैं कौन से गुण में हूं? नहीं, शास्त्रों उदाहरण दिया जाता है जिस प्रकार मुख्य रूप से तीन रंग होते हैं, लेकिन तीन रंग के समन्वय से असंख्य रंग बनाए जा सकते हैं, ठीक है नहीं? तीन रंग के समन्वय से असंख्य असंख्य रंग बनाए जा सकते हैं। उसी प्रकार तीन गुणों के संगम से असंख्य गुण, असंख्य व्यक्ति, असंख्य योनियां बनाई जा सकती हैं। कैसे? भगवान 10वें श्लोक में बता रहे हैं, रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा, है कि नहीं? क्या बता रहे हैं कि हमेशा गुणों की प्रतिस्पर्धा चलती रहेगी। क्योंकि देखिए, आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, यस और नो में उत्तर दे सकते हैं आप, 5 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में जाके यस और नो में उत्तर दीजिए। क्या आपने कभी अपने अंदर एक ऐसी प्रतिस्पर्धा महसूस की है? अच्छे और बुरे के बीच में हम डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं, हमें पता है क्या अच्छा है, पता है क्या बुरा है, लेकिन डिसीजन करने में, निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है कि कैसे करें, क्या करें। दिल कुछ और कह रहा है, मन कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, दोस्त कुछ कह रहे हैं, हमारे बहुत असमंजस में हम पड़ जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि हमारे अंदर जो गुणों का प्रभाव है वो कभी कभी ऊपर नीचे होता रहता है। कभी हम कुछ अच्छी चीज करना चाहते हैं तो वो हमारा सतोगुण ज्यादा प्रबल है। कभी कुछ क्रियाशील करना चाहते हैं, बहुत कुछ क्रियाशील हो जाते हैं किसी व्यक्ति की चीज के, तो वो हमारा रजोगुण का प्रभाव। कभी हम आलस मारते हैं किसी चीज में कि अरे पेपर जब होगा जब कर लेंगे, पूरा टाइम पढ़ने की क्या जरूरत है, जिस दिन पेपर होगा उसी दिन पढ़ लेंगे, चीटिंग कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे। तो ये हमारा आलस है, तमोगुण का प्रभाव है कि नहीं? कभी रजोगुण प्रभाव प्रधान बन जाता है, कभी सतोगुण प्रधान बन जाता है, कभी तमोगुण प्रधान बन जाता है। एक प्रधान बनेगा तो दोनों कम कम रहेंगे। परस्पर स्पर्धा चलती रहती है निरंतर, ऐसा नहीं है कभी कभी, हमेशा निरंतर स्पर्धा चलती रहती है ना। और इस निरंतर स्पर्धा में जीव निर्णय लेने में असमंजस का सामना करता है। निरंतर स्पर्धा इन दोनों के बीच में चल रही है। अब गुणों के बीच में स्पर्धा चल रही है, उसके बीच में जीव निर्णय लेने में असमंजस करता है। और इस दौरान जब वो जिस गुण प्रधान, जब कोई गुण उसके शरीर में या उसके अंदर है, तब क्या लक्षण होते हैं? प्रधान गुण के समय व्यक्ति क्या करेगा? जब मान लीजिए हमने अभी अभी चर्चा की कि सतोगुण बढ़ जाता है, कभी रजोगुण बढ़ जाएगा, कभी तमोगुण बढ़ जाएगा। तो जब सतोगुण बढ़ जाएगा, हमने उसके लक्षण देखे, सुख और ज्ञान। सतोगुण में वृद्धि जब होती है, पर सतोगुण में जब वृद्धि होगी तो उसके शरीर में क्या बदलाव हमें दिखेंगे, उसकी मानसिकता में क्या बदलाव? सर्वद्वारेषु देहस्मिन्, सर्वद्वारेषु, उसके सारे सारे द्वार, उसकी मानसिकता, उसके कार्य और उसके शरीर में प्रकाश उपजायते, प्रकाशित व्यक्ति बन जाता। ज्ञान यदा तदा विद्या विवृद्धम सत्वमित्युत, उसके अंदर का ज्ञान, विद्या, वृद्धि होती है उसके ज्ञान में। सत्वगुण में जो व्यक्ति है, रजोगुण में जब वृद्धि हो गई अगर मान लो, तो लोभ, लालच बढ़ जाता है। प्रवृत्ति आरंभ, प्रवृत्ति आने लगती है, कुछ ना कुछ मुझे करना है, कुछ भी कर जाऊंगा, कंपटीशन की दुनिया है। कर्मणाम क्षमा स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ, जब हे भरतर्षभ भरतवंशी, जब रजोगुण का वृद्धि होती है
अब ये सारे काम कर्म होते हैं। लोभ बढ़ता है, लालच बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है। क्रोध किसका लक्षण है? रजोगुण। तमोगुण में वृत्ति होती है अप्रकाशो अप्रवृत्ति, ना उसके जीवन में प्रकाश दिखता है, ना उसके जीवन में अप्रवृत्ति दिखती है। प्रमाद है, आलस है, पागलपन है, मोह है चीजों से। कुछ भी उसको बोल दोगे बुरा मान जाएगा, सुसाइड करने पे आ जाएगा, चीजें छोड़ देगा। तमस्येतानि जायन्ते, तामसिक प्रवृत्ति उसकी आ जाती है कब? विवृद्धे कुरु नंदना, जब तामस गुण, तामसिक गुण प्रधान बन जाता है ना। तो ये तीन गुण धीरे धीरे अपने हिसाब से प्रधानता लाते रहते हैं। है कि नहीं? उदाहरण के तौर पर सतोगुणी क्रियाएं क्या होती हैं? जैसे आपने देखा हो कुछ लोग किताबें पढ़ने के शौकीन होते हैं, अलग अलग प्रकार के ज्ञान वृद्धि करने में शौकीन है ना। संगीत में किसी की रुचि है, कविताओं में रुचि है, उपन्यास पढ़ने में रुचि है, विज्ञान में रुचि है, गणित में रुचि है, अलग अलग शास्त्रों में रुचि है, पौधों में पानी डालना, रचनात्मक क्रियाएं करना, जैसे कि चित्रकारी, ऐसी चीजें जिससे ज्ञान को हमें संतुष्टि मिले, सुख मिले। अब आप बोल सकते हो हमें तो दारू पीने से सुख मिलता है, नहीं, वैसी चीजें नहीं, रचनात्मक क्रियाएं करने वाली चीज ऐसी अगर कोई करता है तो ये सतोगुणी क्रिया है ना। इसी प्रकार अभी अलग अलग गुण के क्या क्या कार्य होते हैं, गुणों के गुणातीत कर्म क्या होते हैं, है ना। भगवान बता रहे हैं, इसलिए गुणातीत कर्म, जो व्यक्ति जिस गुण में रहता है उस हिसाब से मृत्यु के बाद की उसकी गति क्या होती है, भगवान आगे यह बताते हैं। मृत्यु के बाद की गति, अगर वो मर जाएगा, कोई व्यक्ति सतोगुण प्रवृत्ति का है और अगर उसने शरीर छोड़ दिया तो क्या होगा? यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत्, तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। है कि नहीं? सतोगुणी व्यक्ति होगा वो ऊपर की तरफ प्रगति करेगा, है कि नहीं। राजसिक व्यक्ति जो होगा वो वहीं के वहीं रहेगा। तामसिक व्यक्ति जब मरता है, तामसिक व्यक्ति जब मरता है तो क्या होता है? वह नीच योनि में जाता है। मध्यकालीन प्रभाव क्या होते हैं गुणों के, है ना। जब गुण के, देखिए गुण है, गुण के पश्चात क्या प्रभाव होंगे, गुण के तुरंत प्रभाव क्या होंगे, और सतोगुण रजोगुण तमोगुण में कार्य करते हुए मध्यकालीन प्रभाव क्या होंगे, बीच में क्या होगा? सात्विकम निर्मलम फलम, जब सतोगुण क्रियाएं हम कर रहे होंगे तो निर्मलम फलम, साफ स्वच्छ फल हमको, कर्म फल हमको मिलेगा। और रजोगुण के जो फल होते हैं वो दुख देते हैं, दुख, क्योंकि व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो परेशान रहता है, स्ट्रेस, डिप्रेस्ड। तमोगुण के जो कर्म फल हैं क्या होते हैं? अज्ञान, कुछ भी करो आप, अज्ञान का कारण है तम, है ना। किसी भी व्यक्ति को आप पहचान सकते हैं क्या? अब आपने जान लिया, आपसे पूछना चाहता हूं, कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं आप 5 सेकंड के अंदर, क्या अब आप समझ सकते हैं कौन सा व्यक्ति कौन से गुण में है? थोड़ा आइडिया आपको लगा? सतोगुण में कौन है, रजोगुण में कौन है, तमोगुण में कौन है? क्या अब आप निश्चय कर पाएंगे? इन तीनों के बीच में भेद आप जान पा रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, रिस्पॉन्स हम देखते हैं। हाँ, यस, धन्यवाद, है ना। अभी भगवान बता रहे हैं कि जब असलियत में व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है तो क्या होता है? ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ, ऊपरी लोकों में, देव लोकों में ऐसा व्यक्ति जाता है। स्वर्ग में, जैसे बोलते हैं ना, स्वर्गवासी हो गए। हर व्यक्ति स्वर्गवासी नहीं होता,
सतोगुणी व्यक्ति स्वर्गवासी होगा। कोई दारू पी रहा है, तमोगुण में रहता है, मर जाएगा तो बोलेंगे वो तो स्वर्ग सिधार गया। अरे नहीं सिधार गया, स्वर्ग स्वर्ग नहीं जा रहे हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजस, जो राजसिक व्यक्ति होते हैं, इसी जगत में काम करना चाहते हैं, मृत्यु के उपरांत भी इसी जगत में जन्म लेते। जघन्य गुण वृत्ति स्थ, गुण की वृत्ति के अनुसार एक व्यक्ति अपनी गति प्राप्त करता। अधोगच्छन्ति तामसा, तामसिक प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है उसकी अधोगति होती, नीच योनि में जन्म लेता है, पशु योनि में जन्म लेता है, नीच कुल में जन्म लेगा, इंसानों में नीच बनेगा, है ना। भगवान ने इतना सब अर्जुन को बता दिया, तो अब भगवान गुणों के प्रभाव से निकलने का उपाय अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, हे अर्जुन, गुणों के प्रभाव से तुम कैसे निकल सकते हो, है ना। क्योंकि गुण के प्रभाव से कोई भी निश्चित रूप से कोई भी बचा हुआ नहीं है कि नहीं। कोई गुणों के प्रभाव से बचता नहीं है। लेकिन अर्जुन कैसे निकलेंगे? सबसे पहले क्या जानना होता है हमें कि ये तीनों गुणों के अंतर्गत कुछ भी हो रहा है, इसके परम भगवान ही इसके कारण है। कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपने देखा कि बहुत गुस्सा करता, छोटी सी चीज में गुस्सा करता, तो आपको समझ में आएगा कि रजोगुण के प्रभाव में है, रजोगुण प्रधान है। और इसका कारण कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो कि संपूर्ण जगत को चला रहे हैं। वो परोक्ष रूप से कारण हो सकते हैं, लेकिन हैं अंततः हर चीज के कारण, मूल कारण भगवान ही है। और गुणों को अगर कोई व्यक्ति समझता है, गुणानेतानि तीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्तमृतमश्नुते। गुणों से परे जाने के बाद और क्या होगा? व्यक्ति दुखों से परे हो जाएगा, दुख से ऊपर उठ जाएगा, सुख दुख से ऊपर उठ जाएगा, किसी भी अवस्था में संतुष्ट रहे, है कि नहीं। किसी भी स्थिति में जाएगा, हमेशा संतुष्ट रहेगा कि किस प्रकार जो है, कोई भी चीज अगर देखिए होती है, हम हमारे जीवन में, आपने देखा होगा हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है तो हम उससे परेशान हो जाते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। हमारी प्रतिक्रिया विभिन्न प्रकार की हो सकती है। कभी हम रोने लगते हैं, कभी हम अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं, कभी हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब हम ये प्रकृति के तीन गुणों का विज्ञान समझ लेंगे, किस प्रकार ये जीवात्मा पे कार्य करती है, हम संतुष्ट हैं, है ना। अब ये जानने के बाद कि तीन गुणों के प्रभाव से परे कैसे जाना है, अर्जुन यह पूछते हैं कि किसी व्यक्ति को यह बीमारी है तो उसके लक्षण तो जानने आने चाहिए ना। जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि कोरोना फैला था पहले, अभी भी कभी भी न्यूज आती है, सबसे पहले क्या बताया जाता है कि अगर ये आपको हो गया तो लक्षण क्या होंगे? सूखी खांसी, बंद नाक, सांस लेने में दिक्कत, हल्का बुखार। अगर आपको ये लक्षण है तो कृपया अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र में जाके कोरोना का टेस्ट कराएं, है कि नहीं। एक्सपीरियंस है इस चीज का। ओमिक्रॉन में क्या बता रहे हैं? इसमें कोई भी लक्षण नहीं आएगा आपको, कोई भी लक्षण नहीं आएंगे आप, है कि नहीं। लेकिन एक्सरे कराएंगे तो निकलेगा छाती में आपके वायरस निकलेगा। इसलिए अर्जुन यहाँ पे भगवान से लक्षण पूछ रहे हैं क्या कि कैर्लिंगस्त्रैगुणाते नेतान, क्या कि अगर कोई तीन गुणों से प्रभावित है, किन लक्षणों से जाना जाता है, और कोई तीन गुणों से प्रभावित है उसके ऊपर जाने का क्या रास्ता है, हे भगवान। किस तरह समझें कि ये व्यक्ति गुणों से ऊपर चला गया? किमाचार का आचरण कैसा होता है, क्या वो ऐसा करता है कि हमें समझ में आ जाता है कि वो गुणों से ऊपर चला गया है कि नहीं।
तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि उनके विचार मुझ में वास करते हैं, है ना। हमेशा ऐसे भक्त भगवान के बारे में सोचते रहते हैं। इससे हम समझ सकते हैं क्या, कि वह गुणों के ऊपर गुणातीत हो गए हैं और उनका जीवन मेरी सेवा में समर्पित है। क्योंकि देखिए, 3 गुणों में भक्ति जो है, भगवान की भक्ति 3 गुणों के अंतर्गत नहीं है, गुणों से परे है। भगवान गुणों से परे है, इसलिए भक्त जो भक्ति करता है वो गुणों से परे चला जाता है, शुद्ध सत्व जिसको कहा जाता है। सत्व गुण अच्छा है भक्ति करने के लिए, लेकिन हमें शुद्ध सत्व गुण में जाना है। एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं और मेरी चर्चा में परम संतोष का अनुभव करते हैं, निरंतर मेरी सेवा में लगे रहते हैं निष्ठापूर्वक, है ना। और भगवान उन्हें ऐसा ज्ञान प्रदान करते हैं जिससे वो भगवान के पास आ सकते हैं। ठीक है नहीं? तो गुणातीत, गुणातीत मतलब गुणों के परे हो जाना। गुणों के प्रभाव उस व्यक्ति पर नहीं पड़े। कब? जब वह भगवान की भक्ति करता है ना। और सबसे आसान उपाय, ये सारे गुण जो हैं ये विकसित करने का सबसे आसान उपाय क्या होता है? यहाँ पे भगवान बता रहे हैं 26 नंबर श्लोक में, 14वें अध्याय का 26 नंबर श्लोक बहुत महत्वपूर्ण। भगवान ये बता रहे हैं, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। माम च यो अव्यभिचारेण, अव्यभिचारेण क्या शब्द आपने सुना है पहले? 13वें अध्याय में कल हमने सुना है, बिना व्यभिचार की भक्ति। माम चाहिए जो मेरे, मुझ पर अव्यभिचारेण पूर्ण भक्ति कर रहा है, भक्ति योग से मेरी सेवा कर रहा है, सगुणान समतीत्यैतान, वो गुणों के परे चला जाता है, ब्रह्म भूयाय कल्पते, वो ब्राह्मण स्तर पर चला गया है। ब्रह्म ज्ञान है उस व्यक्ति को। अब ब्रह्म ज्ञान है, हमने पहले पढ़ा था, जो ब्रह्म ज्ञान में वासना करते हैं वो मायावादी हैं, भगवान तो पुरुष हैं। तो अब भगवान ब्राह्मण और अपने बीच का संबंध बताएंगे इस श्लोक, कि ब्राह्मण और उनके बीच में क्या संबंध है, भगवान क्या बता रहे हैं। और आधुनिक जगत के महानतम उदाहरण हैं कौन? श्रील प्रभुपाद, जिनमें गुणातीत होने के सारे गुण थे, गुणों से ऊपर थे। इसलिए ये जो वीडियो आप अभी देखेंगे, ये उनके मृत्यु के, जब उन्होंने ये लोक से प्रवास किया, भगवत धाम को प्रवास किया, मृत्यु के कुछ दिन पहले के, उनके तिरोभाव के कुछ दिवस पहले की यह वीडियो है। और देखिए वो भागवत पर टीका दे रहे हैं। उनके विदेशी शिष्य रिकॉर्डर उनके मुंह में लगाए हुए हैं, उनके शरीर में केवल हड्डियां हैं और खाल बची हुई है, लेकिन वो शास्त्रों पर प्रवचन कर रहे हैं और उस पर टीका दे रहे हैं श्रीमद् भागवत पर। सुनिए ये भी। By hearing, by discussing Srimad Bhagavatam, this Rajagun Tamagun is subdued. Then Satagun remains. Nashtaprayasya avadve nityam bhagavatasya. Then Satagun Tamagun cannot do us harm. आपने देखा कि श्रील प्रभुपाद किस प्रकार गुणातीत हैं। कोई व्यक्ति अगर मरने के इतने निकट है तो क्या ज्ञान की बातें कर सकता है? केवल ज्ञान की बातें छोड़िए, शास्त्र के ऊपर, शास्त्र भी साधारण नहीं, श्रीमद् भागवतम के स्कंधों की टीका लिखी जा रही है मृत्यु के समय में। क्या कोई साधारण व्यक्ति ऐसा कर सकता है? कदापि नहीं।
इसीलिए श्रील प्रभुपाद गुणातीत थे, ब्राह्मण स्तर पर थे। और ब्रह्म और भगवान के बीच क्या संबंध है, भगवान बता रहे हैं 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में। यह आधार है, यह सबूत है इस बात का कि श्री कृष्ण ब्राह्मण के उद्गम स्रोत हैं। जो ब्राह्मण ज्योति है वो भगवान श्री कृष्ण से निकलती है। भगवान क्या बता रहे हैं, ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य व्ययस्य च। ब्राह्मण की मैं प्रतिष्ठा हूं, मुझसे ये ज्योति निकलती है अर्जुन। अमृतस्य, ये हमेशा है, नित्य है, अव्यय से खत्म नहीं होती कभी। ऐसा नहीं लगातार ज्योति जलती, ब्रह्म ज्योति जलती जा रही है तो लाइट कम हो गई, फ्यूज उड़ गया, डिम हो गई, पीली से सफेद हो गई, ऐसा नहीं होता। शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च, और इसमें संपूर्ण सुख रहता है, लेकिन इसका स्रोत मैं हूं अर्जुन। इसलिए जो ब्रह्म ज्योति है, निराकारवाद जो है, समझना चाहिए कि भगवान से ही आ रहा है और भगवान परम पुरुष है। है ना, इसलिए ये हमें समझना चाहिए। तो आज हमने क्या क्या देखा इस अध्याय में कि 3 गुण कौन कौन से हैं, उनके बीच में प्रतिस्पर्धा उनके अंतर्गत, और इन तीनों गुणों के अंतर्गत कर्म क्या क्या होते हैं, और जो इन 3 गुणों से परे चला गया है उसका शुद्ध जीवन, पवित्र जीवन किस प्रकार रहता है, और किस प्रकार भगवान ब्रह्म के आधार हैं, उद्गम है। इसी के साथ मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। कल हम चर्चा करेंगे अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। बहुत छोटा अध्याय है, आपसे आग्रह करता हूं कि सब लोग आप यह अटेंड करें। कल हम इस पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहाँ पर विराम देते हैं। वैभव प्रभु आगे अनाउंसमेंट्स कंटिन्यू कर सकते हैं, तो विल स्टॉप हियर। आप सभी का धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सभी का आज के सेशन अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के सेशन का क्विज और पीडीएफ शॉर्ट नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर दिए जाएंगे, तो आप क्विज को भरिएगा। और जब 80 सेशंस के बाद में जो सर्टिफिकेट का होगा, जो वो क्विज के आधार पर ही होगा, तो आप सब लोग रेगुलर क्विज भरिए। ओके, आज का सत्र हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।